Yes, good morning, students. Now I'm continuing with the previous lecture. In the previous lecture, we have seen many interesting topic. Now I am explaining the one important that is the unformatted and the formatted input. Okay. So already I have explained the concept of this unformatted and formatted. Now we will understand theory part. So very first the unformatted data. So what is mean by the unformatted data? So the printed data with the default setting by this input output function of this language is known as a unformatted data. तो जो भी चीज we are getting, जैसे for example we have a, है ना, एग्जाम्पल से जल्दी आप समझते हैं तो let we have float let a. Now I am inputting C in A and then C out what that is A. Okay, so this is the small code. Now in this code, let I will explain. You are inputting say 3.14 and something dot dot concept is there. 3.14 is there. So as I am inputting this 3.14, so what we will get the output? We will get a 3.14 or we will get a some different number. ठीक है, तो this is by default we will get a, जैसे for example in C language we are getting a 3.14000000 है ना. आप देखिए आपके प्रिंट एफ में करके देखिए सेम प्रोग्राम व्हाट यू विल गेट एफ यू आर यूजिंग, है ना. दिस सपोज मैं यहाँ पर आपको मतलब दोनों चीज से समझाना चाहता हूँ. लेट आई हैव ए प्रिंट एफ. तो यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ लिया है तो लेट आई हैव परसेंट एफ. In this percent f you want to print the value of this a. Now see practically what you are getting this print f with this a. ठीक है, तो मैं आपको इसको रन करके दिखाना चाहता था. तो देखता हूँ मैं हाउ इट इज पॉसिबल. तो चलिए मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ. तो लेट आई हैव दिस C++ on like compiler and now in front of you the compiler is there. Okay, ना ये आपको पता ही है compiler है आपके पास. Now this compiler, है ना, we want to run this program. मैं इसको रन करके दिखाना चाहता हूँ. Okay, now see how it is possible. uh, देखिए मैं आपको इसको रन करके दिखाना चाह रहा हूँ. तो let I have in this screen we are making a program. See that include IO string and then int main, and then you are telling it is a float and a, and let me have C in a and the C out a. Okay, C in a then C out a. So now see what we are getting this output. तो पहले मैं देखता हूँ कि ये रन हो रहा है कि नहीं. तो here I am getting this is not running because we have a standard using namespace that is stk. Okay, so now I am running this program
my program is running and this the program में मैं इनपुट डाल रहा हूँ लेट 3.14. ठीक है, मैं इसमें इनपुट डाल रहा हूँ. नाउ सी whether we will get a as it is or some extra decimal points. So here I am getting a same output 3.14 3.14. ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी. नाउ ऑल्सो वी हैव ए से printf. मैं printf में भी आपको बताना चाह रहा था. So in this printf, let I have %d and we have this a. Okay. Now we have to include our one more header file. The name is the stdio.h. Okay. Now again run this program. अब इसमें हम प्रोग्राम को रन करते हैं. तो let what we are getting printf. Yes, this is a one error. So हम error को थोड़ा सा करते हैं. Now stop this program. Now see f is there. Okay. तो अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ. देखिए फिर से ध्यान से. तो 3.14 I am inputting. तो by this cout we are getting this 3.14, but by this printf इसको यहाँ पर एंड लाइन भी लगा देते हैं जिससे कि आपको एकदम से आउटपुट सही दिखेगा. तो सी let we have 3.14. Now by this C out we are getting this exactly 3.14, but by this 3.1400 we are getting. ठीक है, तो by default it is not possible. And let I am again doing one more modification so that you can also get a very easy idea of this formatted and fun format. Now say let I have 22.0 by 7.0. Okay, and this a I am not reading by this cn. Now tell me what we will get. So run this one. Now exactly what we are getting. Now see, this is the your one error semicolon. ठीक है, चलिए इसको मैं लगाता हूँ. तो what we are getting now, see we are getting this type of the standard output. तो यहाँ पर standard output आपको मिल रहा है by what your C out and the printf. देखिए C out में मिल रहा है 3.14286 and by this printf we are getting it this one. So this is the standard output. It is a unformatted output. हमें जिसमें formatted करना है. Suppose I want output 3.14 only. How we will get this up to 2 decimal, up to 3 decimal, up to or without decimal? हम कैसे इसको लेंगे? So that we will understand by this formatted output. ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो here we have formatted output. तो हम formatted output की बात कर रहे हैं. Now this is my formatted data. तो by printed data with the default setting जो अभी आपने देखी, by the input output function जो आपने देखा C out and printf से, तो we will get a unformatted data. Now it is a basic form of the input output. And this transfer the internal binary representation of this data directly between this memory and the file. Okay, so here there is a direct mapping. It is not a your formatted data. So for example, in the C in statement it asks for the number while executing. ठीक है ना, तो यहाँ पर पूछेगा वो. And if the user enter the decimal number, जैसे हमने ऊपर दिया, तो the enter number will display using the cout. तो in the basically your है ना, इसके अंदर में ये है, आपको मैं बताऊं यहाँ पर आपको मतलब difference between the your C in and C out है ना. यहाँ पर आपको देखिए एक चीज दिख रही होगी कि here what we have, suppose say int b is there. ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ये नहीं बताना है कि ये इंटीजर, जैसे स्कैन एफ में होता है। स्कैन एफ में क्या होता है कि लेट वी हैव ए स्कैन एफ, तो स्कैन एफ में क्या होता है भाई, तो स्कैन एफ में यू हैव टू स्पेसिफाइड, तो यहाँ पर आपको स्कैन एफ करना है। सो स्कैन एफ में क्या कर रहे थे आप, you are specifying the percent d here and then you are telling this is the b, ठीक है। and let we have printf, तो printf में भी मैं वही कर रहा था अभी तक। तो in this printf we are specifying the percent d in this b and let this is a selection। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से आउटपुट मिल रहा था। मैं फिर से रन करके दिखा रहा हूँ। नाउ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर इनपुट में आपका क्या आएगा, वी विल गेट योर मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पर आप मेमोरी एड्रेस लगा देते हैं। नाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट सी 10 एंड आउटपुट इज 10। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट इन द योर scanf and printf. Now what about the C in C out? Again I am using the this one and C out will be this way, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे we are getting this 10 and output 10 then 20 and output 20। तो यहाँ पे difference आपको दिख रहा होगा कि in the scanf we are specifying this percent D, but in C and C out there is no such kind of percent D and percent F, ठीक है। तो ये आपका जो कंसेप्ट यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो दिस देयर इज नो नीड टू अप्लाई दिस एक्सटर्नल सेटिंग, हमें एक्सटर्नल सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी सी इन सी आउट, एंड डायरेक्टली वी आर गेटिंग ए डेसिमल फॉर्मेट, हमें डेसिमल फॉर्मेट डायरेक्ट मिला, हम परसेंट डी का यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये मेरे को आपको समझाना था। तो लेट वी विल अंडरस्टैंड मोर। तो देखिए इन C++ we can read the input entire by the user at a console, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने दोनों चीजें अभी रन करके दिखा दी हैं। तो इन C++ we can read the input entire by the user at console using an object cin, and through this object we can access the function ifstring, हम डायरेक्टली यूज कर रहे थे। तो बेसिकली there is a some inbuilt concept, get character, this pointer is there, get void is there, get line, other or more functions are there। So let that we understand very soon। In C++, also we have a write the output at a console, directly हम जो कर रहे हैं वो डायरेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट के थ्रू, एंड दिस इज एक्चुअली कॉलिंग द OF string class through this sub object। We can also access this function of the of string classes। तो ऑफ स्ट्रिंग क्लासेस के और भी दूसरे फंक्शंस होते हैं, उसे आप कॉल कर सकते हैं, जैसे पुट, गेट, फॉर एग्जांपल राइट। इस तरीके की चीजें हम यूज करेंगे इन आवर फाइल मैनेजमेंट। तो ये फाइल मैनेजमेंट में वी विल यूज सच काइंड ऑफ द यूर फंक्शन, ये वहां पर हम यूज करेंगे। तो वो थोड़ी देर बाद हम समझेंगे। तो हियर वी विल अंडरस्टैंड द सम इनपुट एंड आउटपुट, मैं आपको बताना चाह रहा था। तो देखिए वो मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर यस आई हैव ए मोर स्लाइड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देयर इज ए सम इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, है ना, जो मैंने अभी रन करके दिखाया वो यहाँ पर ही मैंने पेस्ट भी कर दिया है, तो जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो लेट आई हैव ए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ दिस रीड स्ट्रिंग फ्रॉम कंसोल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, रीड फ्रॉम कंसोल। तो यहाँ पर आप देखिए कि हाउ दिस वी आर डूइंग। तो वी आर मेकिंग ए स्ट्रिंग एज ए डेटा टाइप, फुल नेम एज ए गिवन वेरिएबल। तो सी आउट इज देयर। तो यहाँ पे हम अवर वी कैन यूज दिस कंसेप्ट एज ए अवर फुल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर इंटायर फेवरेट सीजन्स है, तो एक्चुअली फेवरेट सीजन्स, तो यहाँ पर उसका फुल नेम आप दूसरा दे रहे हैं। तो आउटपुट
एक्चुअली आई एम यूजिंग दिस नेम, है ना। तो यहाँ पर फेवरेट सीजन बोल रहा हूँ और यहाँ पर रमेश लिख रहा हूँ, तो ये एम्बिग्यूटी भी दिख रही होगी आपको, बट इट इज एक्चुअली समवॉट मिस्टेक, है ना, कि यहाँ पर मुझे फेवरेट सीजन डालना था, पर मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर एक नेम डाल दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ये नेम आपको यहाँ से मिल रहा है। Okay, so this is the example showing how we can use such kind of the data. Now the another example. अब देखिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग में लेना चाहते हैं। तो दिस मल्टी वर्ड का मतलब क्या है? द मल्टी वर्ड मीन्स आई वांट टू रीड द रमेश कुमार वर्मा, है ना। तो रमेश कुमार वर्मा कैसे रीड करना है मल्टी वर्ड, आपको मेरे को बताना है। तो सी हाउ इट इज पॉसिबल मल्टी वर्ड। देखिए सिंगल से तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, बाय सी इन इट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं सी इन से पढ़ूंगा तो वहां पे मुझे बफर में दूसरे वर्ड्स ऑलरेडी ऑक्युपाइड मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ वी कैन रीड दिस बेसिकली आवर मल्टी वर्ड। तो मल्टी वर्ड रीड करने के लिए वी हैव ए सम गेट लाइन फंक्शन। तो गेट लाइन फंक्शन है जो आईओ स्ट्रीम का ही मेंबर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हियर वी आर यूजिंग द गेट लाइन। तो यहाँ पर देखिए गेट लाइन का यूज हो रहा है एंड वी आर यूजिंग दिस सिंटेक्स। तो गेट लाइन द सी इन वॉट एवर द यूर दिस स्ट्रीम इज देयर, इसको स्ट्रीम यहाँ पर लेंगे हम, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीड दैट इज द फुल नेम। तो यहाँ पर आपका स्ट्रीम आ गया सी इन, और यहाँ पे वी आर यूजिंग वॉट यूर दिस डेटा, है ना। तो दिस इज यूर वेरिएबल। तो ये वेरिएबल बता रहा है आपका जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें आर्गुमेंट दिख रही हैं। तो बाय दिस आर्गुमेंट वी कैन रीड Ramesh Kumar Verma, and we can also get the same output on this Ramesh Kumar Verma. So this is about the how we can use multi-word through the input line. तो ये input line आपको मैं समझाना चाह रहा था। So by this program you can easily understand. Another method is there. You can use this by the your एरे के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए एरे के थ्रू कैसे यूज करेंगे। तो वी हैव एरे, है ना, वी हैव स्टैंडर्ड डेटा टाइप करेक्टर। तो करेक्टर में मैंने एक एरे बना लिया है एंड दिस एरे वी आर रीडिंग बाय दिस काइंड ऑफ द गेट लाइन। तो यहाँ पर जो गेट लाइन है दे आर द टू पैरामीटर, नेम ऑफ द एरे एंड द लेंथ ऑफ एरे। तो ये दो पैरामीटर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो ये दोनों पैरामीटर का हम यूज कर रहे हैं। फुल नेम इज ए एरे नेम एंड दिस शुड बी यूर इन दैट करेक्टर पॉइंटर इज देयर, ठीक है ना। तो नॉर्मल इसको ऐसे ही यूज करते हैं। और ये 20 इज व्हाट, इट इज ए लेंथ ऑफ दिस एरे। तो मैंने यहाँ पर यूज किया है फुल नेम विद दिस 20। तो लेट आई एम इनपुटिंग दिस, माय नेम इज विवेक रविशंकर दुबे, ठीक है ना। तो ये मेरा फुल नेम है, रविशंकर मेरे फादर का नेम है, ठीक है ना। तो बट आई एम नॉट गेटिंग ए फुल लाइक हियर, व्हाई, बिकॉज देयर इज ए 20 कंसेप्ट इज देयर। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम बना के चेक करिए कि हाउ वी आर गेटिंग द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो दिस इज द यूर टुडेज लैब आल्सो। इसको आप रन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड द फॉर्मेटेड कंसेप्ट। तो यहाँ पे एक और मैं आपको पुट करेक्टर का भी एग्जांपल देना चाह रहा था। तो इन दिस पुट करेक्टर वी हैव ए यूर डिस्प्ले द करेक्टर। तो यहाँ पर करेक्टर मेरे पास में एज ए इनपुट है, दैट इज द एच है। तो हाउ वी कैन यूज दिस पुट, तो वी कैन ऑल्सो यूज दिस पुट बाय दिस सी आउट। तो सी आउट के साथ हम लोग पुट कर सकते हैं। तो दिस इज द पुट विद द यूर वन करेक्टर आर्गुमेंट। एक करेक्टर आर्गुमेंट पुट में लेता है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है। वन अनदर मेथड, यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्टली इस करेक्टर को इनपुट डेटा को ले लिया। यहाँ पर इट इज ए इनडायरेक्ट मेथड।
ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि ये पहले CH में स्टोर होगा, फिर ये CH आउटपुट होगा, लेकिन इट इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्टली हमने यहाँ पर वैल्यू को रख दिया तो आउटपुट आ गया। तो बाय दिस फर्स्ट आउटपुट वी आर गेटिंग द करेक्टर वैल्यू H, और दूसरे में हमें दिख रहा है डायरेक्टली द करेक्टर वैल्यू X। ठीक है, तो दिस इज द सम एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हाउ वी कैन यूज दिस राइट कंसेप्ट। तो राइट कंसेप्ट आप देख लीजिए अभी। तो राइट कंसेप्ट वी आर यूजिंग। नाउ सी व्हाट इज द राइट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा राइट का कंसेप्ट है। नाउ दिस बाय राइट, व्हाट इज द एक्चुअली सिंटेक्स ऑफ राइट। तो सिंटेक्स ऑफ राइट इज राइट then one array and one number. How many value character in this array? This is the syntax of this write. So let I have very first, this is the data हमारे पास आ गया array1 in which hello world is there. Now I am using this write. So let I am using this array name and with this number of character that I want 5. तो यहाँ पर मुझे 5 करेक्टर डिस्प्ले करना है एंड देन आई हैव टू डिस्प्ले दिस 10 करेक्टर। तो मुझे 10 करेक्टर डिस्प्ले करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड 10। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 5 करेक्टर ही डिस्प्ले हुए हैं एंड दिस इज द हेलो एंड हियर वी आर डिस्प्लेइंग दिस हेलो वर्ल्ड का केवल WORL आ रहा है। So this is the use of write. So how we can use this write, how we can use the put, है ना। तो ये सारी चीजें आप आज रन करके देखिए लैब में किस तरीके से हमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द फॉर्मेटेड कंसेप्ट। ओके, तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप मुझे चाहे व्हाट्सअप करिए चाहे कहीं भी करिए, लाइक वाइक भी करते रहिए भाई। थोड़ा सा मतलब आजकल अच्छा लगता है ये सब चीज़ें मेहनत करने का। कुछ आप लोग मुझे रिटर्न भी तो दो यार, ऐसा थोड़ी है यार कि मतलब इतना कर रहे हैं और आप लोग को मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है ना। तो ठीक है, जैसा आपका मन है आप करिए। यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड। थैंक यू बेटा।